ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دیں، ہر طرح کی غلط یا بدعت والی بات سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں، الہی آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کی تھی، جس کے اندر ہم فرسٹ 2 آیات کو کور کر چکے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے تیسری آیا، مالکی یوم الدین۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اگر ویو دوں پیچھے سے کہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا، جسٹ جو ہے وہ ان 1 منٹ، کہ ہم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر اس پوری 2 آیات کی ٹون دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں ہی تعریف کے قابل ہوں، ٹھیک ہے، اور میں رب ہوں عالمین کا۔ اور پھر کہا میں بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں عارضی بھی اور رحم کرنے والا ہوں اور مستقل بھی رحم کرنے والا ہوں۔ اب جو آگے آ رہا ہے یہ ٹوٹلی جو اس سورت کی ٹون ہے نا اس کو بدل رہا ہے۔ اس سورت کی نیکسٹ جو ٹون ہے وہ چینج کر رہا ہے۔ پیچھے اگر آپ دیکھو تو رب کا معنی آیا، ٹھیک ہے، معنی بھی رب کا آیا، آگے رحمان اور رحیم آ گیا، یعنی رب میں بھی محبت ہے، رحمان اور رحیم میں بھی محبت ہے۔ اب محبت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ شفٹ کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی کا اظہار کرنے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ تو بتا دیا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، میں بہت پیار کرنے والا ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، تمہیں بڑا کرتا ہوں، تمہارا ہر لمحے خیال رکھتا ہوں، تمہاری زندگی میں اچھی چیزیں لے کے آتا ہوں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ موو کریں اتھارٹی کی طرف۔ اب نا آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کے یا میرے پاس یا کسی بھی انسان کے پاس اتھارٹی آتی ہے، یعنی کہ وہ کسی جگہ پہ کسی پوسٹ پہ وہ بیٹھتا ہے، اتھارٹی آتی ہے کسی پوائنٹ کے اوپر اس کے پاس، تو وہ 2 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ یہ کرے گا اپنی اتھارٹی آنے کے بعد کہ ہر چیز کو اس کے مطابق چلنے دے گا، بولے گا جیسا تمہارا دل کرتا ہے تم ویسے کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، کھلی چھوٹ دے دے گا۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ وہ سختی کرے گا، اور سختی سے ہر کسی کو یہ انسسٹ کرے گا کہ تمہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ جیسے مثال دیتی ہوں ایک، کہ ایک جگہ آپ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے مالک نے آپ کو کہا ہے دس از یور باؤنڈری، یہ دائرہ کار ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ اب آپ وہاں کام کر رہی ہیں اور آپ کا مالک جو ہے اس کے پاس اتھارٹی موجود ہے، وہ آپ کو کہتا ہے اس دائرے کار سے تم نے باہر نہیں جانا کسی صورت میں۔ اچھا، آپ بڑی ڈری ہوئی ہیں کہ اگر میں نے باہر قدم بھی رکھا تو یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے فائر کر دے گا، کام سے نکال دے گا۔ آپ کی 200% کوشش ہے کہ میں باہر دائرے سے نہیں جاؤں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے نا آپ کا جو پیر ہے وہ ہلکا سا باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے، تھوڑا سا پیر باہر جاتا ہے۔ جو ہی پیر تھوڑا سا باہر جاتا ہے آپ فوراً مالک کو دیکھتی ہیں پیچھے، کہیں مالک مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کہیں، کیونکہ اس نے مجھے فائر کر دینا ہے جب میں نے پیر باہر رکھا تو۔ آپ دیکھتی ہیں کہ مالک آپ کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے اپنے منہ کے ایکسپریشنز بھی نہیں بدلے، اس کے ایکسپریشنز بھی بالکل سیم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اچھا، آپ ڈری ہیں بہت زیادہ، لیکن آپ نے پھر واپس دائرے کے اندر آ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑا ٹائم گزرا، آپ کا پھر پیر پھسلا اور آپ نے فوراً مالک کو دیکھا لیکن مالک نے پھر کچھ نہیں کہا۔ تیسری دفعہ آپ نے سوچا بھئی مالک 2 دفعہ اس کے تو ایکسپریشنز بھی نہیں بدلے، لگتا ہے اس کی تو دیکھ کے اس نے اندیکھا کر دیا ہے، تو میں خود ہی باہر جا کے دیکھتی ہوں بھلا اب کیا کہتا ہے، ذرا ٹرائی کرتی ہوں۔ آپ نے پیر باہر رکھا لیکن مالک نے کچھ نہیں کہا، لیکن ڈر آپ کے اندر ابھی بھی تھا۔ چوتھی دفعہ آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا، ایلیمینیٹ ہو جائے گا۔ آپ ایک پیر باہر رکھیں گی اور ایک اندر رکھیں گی، جب دل کرے گا باہر رکھیں گی، جب دل کرے گا اندر رکھیں گی، لیکن مالک دیکھ رہا ہے۔ اور سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مالک دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں پکڑ لے گا، وہ تمہیں فائر کر دے گا، لیکن آپ کہیں نہیں نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا مجھے، وہ بہت نائس ہے، اتنی دفعہ میں نے پیر باہر نکالا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا تو اب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ کیا مالک کچھ نہیں کہے گا؟ کبھی کبھی نا جو خاموشی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے ایک طوفان ہوتا ہے جو کہ جب آتا ہے تو ہر چیز نہست و نابود کر دیتا ہے۔ آپ اور میں نا
ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کار دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارا دائرہ ہے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے۔ آپ کا پیر غلطی سے باہر گیا، مثال آپ کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی، آپ کا دل خوفزدہ ہو گیا، آپ کو غلطی سے کسی نامحرم نے دیکھ لیا، آپ کا دل خوفزدہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو نماز چھوڑے گا اس کو کے اوپر تو عذاب آئے گا، اس کو تو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ آپ بولے مجھے تو کوئی جہنم میں نہیں کسی نے پھینکا، نہ مجھے کوئی عذاب آیا ہے، میں اس دفعہ بھی چھوڑ دی تھی، خیر ہے کچھ نہیں ہوا تھا، آج پھر چھوڑ دیتی ہوں، آج پھر بے پردگی کر لیتی ہوں، آج پھر گانے سن لیتی ہوں، میرے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا تو گناہ کرتی چلی جاتی ہوں، پہلے دن ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے جب دائرے سے پیر باہر جاتا ہے، آہستہ سے ضمیر بھی مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹون بدلی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بڑی شدید کرتا ہوں، لیکن اس محبت میں بگڑ مت جانا، رحمان اور رحیم کا سوچ کے بگڑ مت جانا۔ اگلی آیت اب آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اس رحم کی قدر نہ کی، اگر تم نے اس پیار کا جو میں تم سے کرتا ہوں تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اگر اس مخلت کا تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ایک دن ایسا آئے گا جب انصاف کے ساتھ میں تمہیں پکڑ لوں گا، اور ہر چیز جو تم اچھی بچی کر کے آئی ہوئی ہو نا، اس کا فیصلہ تم نے دینا ہے اس دن۔ ٹھیک ہے؟ یہ ایک الارمنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بخش دے گا، اللہ تو، اللہ نے مجھے کیا کہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے۔ یقیناً یہ سارا کچھ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اس کے اوپر سارے کا سارا جو ہے انحصار کر لینا، یہ سراسر غلط چیز ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ جو تم ہر گناہ دڑلے سے کر لیتی ہو، جو تم میری حدود کا خیال ہی نہیں رکھتی، تمہیں میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا لیکن تمہیں پتہ ہے اللہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، تو میں اپنی من مرضیاں چلاتی جاتی ہوں، جب دل کرتا ہے بد اخلاقی کر لیتی ہوں، جب دل کرتا ہے کسی کا دل دکھا دیتی ہوں، جب دل کرتا ہے نامحرم سے باتیں کر لیتی ہوں، حرام کام کر لیتی ہوں، تمہیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، گھر والوں نے تمہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور تم جو مرضی کر رہی ہو۔ فون تمہارے پاس ہے، کوئی تمہارا فون چیک نہیں کر رہا، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا فون میں چیک نہیں کروں گا؟ تمہارا فون میں نہیں دیکھ رہا؟ آپ اس آیت کا اگلی ٹون دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گی، یہ جو مالکی کا مطلب ہے یہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا فون کوئی چیک نہیں کر رہا، آپ کو لگتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کوئی چیک نہیں کر رہا، اللہ آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے کہ میں کیا کیا تمہارا چیک کر رہا ہوں اور میں تمہیں کیسے کیسے پکڑوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے مالک کے پاس آپ کام کرتے ہیں تو ایک دن مالک آپ کو بلائے گا اور سارے کا سارا جو آپ کا پیچھے ریکارڈ گزرا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گا، اس پوائنٹ پہ یہ تم نے کیا تھا، یہ کیا تھا، اور آپ کو بولے گا اب تم فائر ہو، اب تم اپنا کام کرو جا کے، میں نے تمہیں نہیں رکھنا۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ایک دن ہو جائے گا، لیکن اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب موو کرتے ہیں اپنی آیت کی طرف۔ جیسے ایک اور اس میں مثال آپ ایڈ کر لیں ٹیچر کی۔ اب ٹیچر ہے نا، ٹیچر بھی نا ایک اس طرح کا حساب ہوتا ہے کبھی کہ وہ ایک بچہ ہے اس کو بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ تم چیٹنگ کر رہے ہو، تم چیٹنگ کر رہے ہو، تم بدتمیزی کر رہے ہو، تم پڑھ نہیں رہے، لیکن بار بار بچہ اب اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا، اس کو ٹیچر تو بہت نائس ہے، یہ تو بہت پیاری ہیں، یہ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہے، یہ تو شہزادی شہزادی کر کے مجھ سے بات کرتی ہے، مجھے کیا کہہ لینا ہے۔ ایک دن ٹیچر کو چڑھتی ہے پھر اچھی خاصی تپ، اور ٹیچر اس کا پیپر چیک کرتی ہیں، اندر اس کو فیل کر دیتی ہیں کیونکہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ ڈریں اس دن سے جب ہم فیل کر دیے جائیں، جب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور ہمیں فیل کر دیا جائے، جب ہمیں پتا ہو کہ ہم تو پاس ہو جائیں گے، ہم پہ تو رحم ہو جائے گا، لیکن اس دن کوئی رحم نہ ہو۔ ڈرنا اس دن کے لیے ہے ہم لوگوں نے۔ ٹھیک ہے؟ اس دن ڈرنا ہے۔ اب اس ٹون کو ذرا پکڑ کے چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے آپ نے نا یہاں پہ دیکھیں، اچھا پہلے نا اس ترتیب کو چیک کرتے ہیں جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ 3 آیات ابھی تک ہم نے، تیسری آیت تک ہم گئے ہیں نا، اب دیکھیں ذرا پہلے ترتیب میں کتنی حکمت موجود ہے۔ سب سے پہلے تھا الحمد للہ رب العالمین، آگے ہے الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم درمیان میں آیا ہوا ہے، اس کے ارد گرد آیا ہے الحمد للہ رب العالمین، اور آگے آیا ہے مالک یوم الدین۔ اب آپ ایک بات نوٹس کریں، ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان کا مطلب ہے عارضی رحم، رحیم کا مطلب ہے مستقل رحم، یہ تو آگے پیچھے بھی تو ہو سکتے تھے نا، رحمان ادھر آ جاتا رحیم ادھر آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کو ڈیزائن کرنے کے پیچھے کتنی حکمت موجود ہے، آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے عارضی رحم، اور عارضی رحم کو جوڑا ہے رب نے عالمین کے ساتھ،
आलमीन, तमाम आलमीन, तमाम सोसाइटीज, तमाम हर तरह की चीजों की बात आलमीन के अंदर आ जाती है। आरजी रहम को अल्लाह ने आलमीन के साथ जोड़ा है, और मुस्तकिल रहम को अल्लाह ताला ने यौमिद्दीन यानी कयामत के दिन के साथ जोड़ा है। मतलब आप फील करें जरा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक तरफ आ गया, मालिक यौमिद्दीन एक तरफ आ गया, दरमियान में रहमान और रहीम आ गया, और रहमान को आलमीन से जोड़ा है, यानी आलम दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह ताला के रहम की जरूरत होती है। और जो अल्टीमेटली जो मुस्तकिल रहम की इंसान को जरूरत होगी वो यौमिद्दीन में होगी। आप नोटिस कर रहे हैं कि रहमान का पहले और रहीम का बाद में आने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत मौजूद है। उसके बाद आप एक और चीज नोटिस करें, ये ना हमें असल में ना कुरान हमें सलीका बताता है जिंदगी के हर मामले में हमने चलना कैसे। अब ये आयत का जो एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपको सलीका बताएगा चीजों को डील करने का। आप माँ हैं तो बच्चों की तरबियत करने का सलीका बताएगा, आप टीचर हैं तो बच्चों को डील करने का सलीका बताएगा, आप अपने घर में कहीं अथॉरिटी है आपके पास तो उसको डील करने का तरीका आपको अब वाली जो तरतीब का जो है एक्सप्लेनेशन वो बताने लगी है। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले आया है, इसमें क्या बात है। इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं मैं रब हूँ आलमीन का, दुनिया का, दुनिया और जहान हर जगह का मैं रब हूँ। अब इसमें ना एक डर है, एक खौफ है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम कर रही हो, जो तुम्हारे आलमीन है, जो तुम्हारी कायनात है, मैं उसका रब हूँ। वो तुम्हारे अंदर की कायनात हो या तुम्हारे बाहर की कायनात हो, मैं उसका रब हूँ। यहाँ डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। इंसान सोचता है रब है वो मेरा, वो देख रहा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, पहले में डर आ गया। आखिरी वाला क्वेश्चन देखें, मालिकी यौमिद्दीन, इधर भी डर है। इंसान डर जाता है जो मैं कर रहा हूँ मैंने उसका हिसाब देना है, और हिसाब बड़ा सख्त होगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले भी डर है, बाद में भी डर है, दरमियान में डर है। दरमियान में क्या है, रहमान रहीम, शदीद तरीन प्यार को अल्लाह ने दरमियान में रखा है। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है। दोनों साइड्स पे डर है, दोनों साइड से इंसान को डराया जा रहा है, उसको अलार्म दिया जा रहा है कि अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। दरमियान में रहमान और रहीम आ गया। अब यहाँ पे ना पहली चीज मुझे ये समझ आ रही है कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे डरती हो, और इस डर में कभी ऐसा होगा तुम कोशिश कर रही हो अल्लाह के रास्ते में चलने की, लेकिन कभी ऐसा होगा तुम्हारी नमाज छूट जाएगी, कभी ऐसा होगा तुमसे गुनाह हो जाएंगे, कभी ऐसा होगा तुम नेकियों में आगे नहीं बढ़ पाओगी, कभी ऐसा होगा तुम्हारे ईमान का लेवल लो चला जाएगा, कभी ऐसा होगा तुमने बहुत सोचा होगा मैं ये भी काम करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ड्यू टू सम रीजन तुम्हारे वो काम नहीं हो पाएंगे, तुम पीछे रह जाओगी। तो तुमने खौफजदा नहीं होना, तुमसे गुनाह हो जाए, तुमने नाउमीद नहीं होना। दोनों तरफ डरा के दरमियान में रहम रख के अल्लाह ने ये बताया है, कुछ भी हो जाए तुमने मौत तक नाउमीद नहीं होना, तुमने मेरे पास आना है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि मेरा प्यार मेरे अजाब के ऊपर हावी है। कितनी खूबसूरत तरतीब है, कितनी खूबसूरत तरतीब है कि आप उसका डर रखें, लेकिन उस डर में अगर आप कोशिश कर रही हैं लेकिन कभी आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो ना उम्मीद होके नहीं बैठ जाना, मायूस होके नहीं बैठ जाना। अल्लाह बता रहे हैं मैं बहुत प्यार करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम आ जाना मेरे पास, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, एक ये। अब जो मैंने आपसे कहा कि हमें ये सलीका सिखाती है, ये आयत हमें सलीका सिखाती हैं कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। आप उस्ताद हैं तो आपने कैसे रहना है, आप वालिद हैं वालिदा हैं आपने बच्चों की तरबियत करनी है। अल्लाह ताला ने हमें एक टोन बताई है कि डर प्लस प्यार, और प्यार डर से ज्यादा। ये हमें ना सलीका बताया गया अपनी जिंदगी में डील करने का। आप माँ है ना, तो बच्चों को डराएं जरूर, आपको आपके बच्चों का आपका डर जरूर होना चाहिए, लेकिन आपका प्यार हावी होना चाहिए। वो आपकी आपकी एक धमकी से डर जाए, ये नहीं कि आपको कोटा लगाना पड़े उन्हें। माए इतना इतना मार लेती है ना बच्चों को, लेकिन बच्चों को आंखों से खौफ चला जाता है, दिल से खौफ चला जाता है। और फिर वो कहते हैं क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा अम्मी, क्या कर लेंगी, मारेंगी ही ना और क्या करेंगी। अल्लाह मार रहे हैं आपको, अल्लाह आपको मार के सिखा रहे हैं, अल्लाह सिर्फ सिर्फ डरा रहे हैं अभी। हम क्यों बच्चों को डायरेक्ट डंडे पे ले आते हैं, डायरेक्ट उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी आंखों का डर रखें, मोहब्बत को हावी रखें, वो आपकी मोहब्बत से डरें। यहाँ पे ना अल्लाह ताला की मोहब्बत से भी डरना है हमने कि वो इतना प्यार करता है। जब वो प्यार में इतना शदीद है तो वो अजाब में कितना शदीद होगा। आप इमेजिन करें जब वो पढ़ती है अर रहमान, वो प्यार में बड़ा शदीद है।
اور जब हम पढ़ती हैं अल वो कहर में भी बड़ा शदीद है, उसका अजाब भी बड़ा शदीद है ना। जब उसका रहम इतना शदीद है, उसका रहम बहुत ज्यादा है, उसका उसकी सख्ती भी बहुत ज्यादा है। आपके बच्चों को आपके प्यार का डर हो कि जब मेरी अम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं तो वो मुझे जब डर मारेंगी तब भी मुझे सख्त मारेंगी, तो मैंने डरना है। हम इतना कुट लेते हैं पहले ही कि बाद में वो उसको उस चीज का डर ही नहीं रहता। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी, अगर उस्ताद हैं आप, आपको अथॉरिटी अल्लाह ताला ने किसी जगह पे दी है, तो बजाय ये कि आप ज्यादा अपना खौफ रखें, आप बच्चों को अपनी खामोशी से डराएं। ठीक है, बच्चों को अपने आप उन चुप कर जाएं और आप कुछ कहें ना, इससे ज्यादा उन्हें खौफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब जरूर अपने अल्फाज का डर रखना चाहिए क्योंकि इस चीज की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन ये टोन हमें बता रही है कि सिर्फ आप डराएं और सिर्फ आप गुस्सा करें, ये चीज जरूरी नहीं है। आपने डर प्लस अपना रहम को लेके चलना है साथ। ठीक है, ये खूबसूरत सा बैलेंस हमें जो सूरतुल फातिहा की 3 आयत हैं ये हमें देती हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले मालिकी का मतलब। अच्छा, अब ना सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने जहन में रखनी है ना, हम जो कुरान पाक पढ़े होते हैं ना पाको इंडिया के अंदर, ये हम पढ़ रहे होते हैं इमाम हफ्स की रवायत के साथ। ठीक है, ओवरऑल जो किरात है वो 10 डिफरेंट इमाम डिफरेंट तरह से करते हैं, माइनर से डिफरेंसेस हैं। 10 डिफरेंट तरीकों से किरात की जाती है। उनमें से एक इमाम है इमाम आसिम कूफी, उनके एक शागिर्द हैं हफ्स। हम इमाम हफ्स की रवायत को फॉलो करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हम कुरान पाक पढ़े होते हैं। ये सारी की सारी जो 10 रवायात है ना, ये किसी बंदे की क्रिएट की हुई नहीं है। जब कुरान नाजिल हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 10 डिफरेंट किरात के साथ नाजिल हुआ था। ठीक है, तो उन चीजों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ट्रांसफर किया। हमारे आज के इरा के अंदर किरात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और इतना ज्यादा नॉलेज भी इस चीज के बारे में नहीं है। हम अगर इसको सीखना शुरू कर देना तो बहुत सी और चीजें भी हमें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ये यहाँ पे मालिकी वर्ड आया हुआ है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब हम ना इमाम हफ्स की रवायत के मुताबिक जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम इसको वर्ड को पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। लेकिन ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आया हुआ है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आया हुआ है। एक तो आया हुआ है मालिकी यौमिद्दीन और एक आया हुआ है मलिकी यौमिद्दीन। जैसे पढ़ा जाता है अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मलिकी यौमिद्दीन। तो दोनों तरह से नबी पाक तक हम तक आया हुआ है। अब हमें इल्म नहीं है उस चीज का, वो एक अलग बात है। अगर आप किसी और, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने ना एक दफा एक मिस्र की औरत थी, उसने मेरे सामने कुरान पढ़ा, तो वो थोड़ा डिफरेंट पढ़ रही थी। तो मुझे लगा शायद वो गलत पढ़ रही है, लेकिन वो गलत नहीं पढ़ रही थी। अब हमें समझ आती है वो गलत नहीं पढ़ रही थी, वहां पे किरात किसी और इमाम की फॉलो की जाती है। और थोड़ी बहुत बस डिफरेंसेस होते हैं, उससे मायने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मायने सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे है मालिकी और दूसरी किरात हमारे पास आती है मलिकी। दोनों का क्या मतलब है? अल्लाह ताला से हम तक दोनों आई हुई है। अब मैं इन दोनों का आपको मतलब बताती हूँ। मालिकी का मतलब होता है हर छोटी चीज का मालिक, हर छोटी चीज का मालिक। जैसे अगर आप एक गाड़ी के मालिक हैं तो वो छोटी चीज है ना। आप पेंसिल के मालिक हैं, आप एक टेबल के मालिक हैं, आप एक बुक के मालिक हैं। तो ये हो गया मालिक होना किसी चीज का। अल्लाह ताला ने हम तक दूसरी रवायत मलिकी भी पहुंचाई हुई है। मलिकी का क्या मतलब होता है? मलिकी का मतलब होता है हर बड़ी से बड़ी चीज का मालिक। जैसे कोई किसी मुल्क का बादशाह है तो वो बहुत बड़ी चीज का मालिक है। ठीक है, कोई सल्तनत का बादशाह है तो वो बहुत बड़ी चीज का मालिक है। अब अगर कोई छोटी चीज का मालिक है तो उसके, अगर आप अपनी बुक के मालिक हैं तो बुक अगर फट भी जाएगी तो खुद ही आप उसको रिकवर कर लोगी ना। अगर आप अपने घर के दरवाजे की मालिक हैं तो दरवाजा आप खुद ही ठीक कर लेंगी। कोई छोटी मोटी खराबी हो गया खुद ठीक कर लेंगी। लेकिन जो मलिकी है, यानी हर बड़ी से बड़ी चीज का मालिक, किसी मुल्क का, किसी सल्तनत का, किसी बादशाह, कोई बादशाह है वो किसी सल्तनत का मालिक है, तो अगर किसी के बंदे के घर का दरवाजा खराब हुआ है तो क्या बादशाह को इल्म होगा कि उसके घर का दरवाजा खराब हुआ है? या किसी की गाड़ी खराब हो गई है तो बादशाह को क्या इल्म है कि उस बंदे की फलां जगह पे गाड़ी खराब हो गई है? माय मतलब क्या है समझाने का, कि जब हम अल्लाह ताला को सामने रखते हैं ना, तो हर मिसाल
मतलब हर मिसाल जो है ना वो उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जैसे हम दुनिया में अगर देखें तो मलिकी या मालिकी में हम देखते हैं छोटी चीज का जो बंदा मालिक है वो छोटी चीजों को रिकवर कर रहा है, बड़ी चीज का जो मालिक है वो उसको छोटी चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं है। जैसे वजीर आजम का ध्यान नहीं होगा कि किसी का बच्चा बीमार है या किसी के घर में कौन सी चीज की कमी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारी तरफ दोनों रवायात भेज के हमें ये बताया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की हर छोटी चीज का भी मालिक हूँ और हर बड़ी चीज का भी मालिक हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, मैं उनका भी मालिक हूँ। और तुम्हारी जिंदगी में जो हर छोटा छोटा इवेंट हो रहा है, मैं उसका भी मालिक हूँ। अब देखें, अगर आप सिर्फ मालिक ही पढ़ते रहें तो मालिकी का मतलब होता है छोटी चीज का मालिक। आपको आप बोलेंगे बस छोटी चीज का मालिक, बस छोटी चीज का मालिक है अल्लाह। लेकिन जब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मालिकी और मलिकी दोनों आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वह हर छोटी चीज का भी मालिक है और हर बड़ी से बड़ी चीज का भी मालिक है। इतना बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है ना यहाँ पे हमारे लिए, अगर हम समझें तो। अलार्मिंग सिग्नल अब क्या है? अब आप देखें कि जब आप दुनिया में अभी मौजूद हैं, अल्लाह ताला आज आपको सुना रहे हैं कि तुम जो कर रही हो ना, छोटे से छोटा भी, और तुम कहती हो कि वो किसी को नहीं पता, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। कभी कभी हम छोटी छोटी नेकियां करते हैं जो किसी को पता भी नहीं होती। अल्लाह कह रहे हैं मैं छोटी छोटी तुम्हारी नेकी को देख रहा हूँ, छोटे छोटी तुम्हारी बुराई को भी देख रहा हूँ, और हर चीज का तुमसे हिसाब लूंगा। और मलिकी बहुत बड़ी बड़ी जो तुम खुल के करती हो, सबके सामने करती हो, मैं उन नेकियों को भी जानता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है क्लास दे रहे होता है लेकिन आपको पीछे आपकी इतनी तबीयत खराब होती है, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा होता, 70 लोगों को नजर नहीं आ रहा कि आपसे बैठा नहीं जा रहा, लेकिन अल्लाह को पता है जो छोटी चीज, छोटी सी चीज आप छुपा रही हैं। आपको कभी कहीं दर्द हो रही है लेकिन आप चुपचाप पढ़ा रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता है आपके अंदर क्या तकलीफ है जिसको आप दबा रही हैं। हर छोटी और हर बड़ी चीज का वो मालिक है। ठीक है, यहाँ पे आपने अब इसको जहन में रखते हुए अगली बात को सुनना है। अच्छा, आगे आया है यौम वर्ड। मालिकी यौमुद्दीन। अब यौम का क्या मतलब है? मालिकी का क्या पढ़ा था, जेन में रखना है, हर छोटी का और हर बड़ी का। अब देखें, यौम कहते हैं दिन को, दिन का मालिक। दिन में वक्त भी होता है, दिन में घंटे भी होते हैं, और दिन में सेकंड्स भी होते हैं। ठीक है, दिन में सब कुछ आ जाता है। दिन में साल के सारे दिन आते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं हो रही, सारे दिनों की बात हो रही है। अभी हम दीन को नहीं पढ़े आगे, अभी आपने दीन को ज़हन में नहीं रखना जो आगे वाला है, अभी जस्ट हमने ना मलिकी को और मालिकी को ज़हन में रखना है। अल्लाह ताला ने ना यहाँ पे उस चीज की अथॉरिटी ले ली है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वक्त। अल्लाह ताला ने वक्त की अथॉरिटी ले ली है, अल्लाह ताला ने हर सेकंड की अथॉरिटी ले ली है। यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारी जिंदगी का जो वक्त है ना, जो तुम्हारा वक्त है, जो टाइम है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप एक गाड़ी के मालिक हो सकते हैं, आप एक पेंसिल के मालिक हो सकते हैं, आप एक मुल्क के बादशाह हो सकते हैं, लेकिन आप वक्त के मालिक नहीं हो सकते। आप वक्त को ऑन नहीं कर सकते, आप सेकंड्स को ऑन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये सेकंड मेरा है और वो मिनट मेरा है और वो घंटा मेरा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपनी अथॉरिटी को यहाँ इतनी वसअत दी है कि मेरी अथॉरिटी में वो चीज है जो किसी और की अथॉरिटी में नहीं है, और अल्लाह की अथॉरिटी में वक्त है, वक्त है। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने कहा हर छोटी और हर बड़ी चीज का मालिक, और इसको यौम के साथ लगाएं जरा आप, दिन का मालिक, वक्त का मालिक, और वो वक्त दुनिया का वक्त हो या वो वक्त आखिरत का वक्त हो। पहले आप दुनिया से रिलेट करें। अल्लाह ताला हर छोटी से छोटी चीज जो आप सिंगल मिनिमम छोटे माइनर से सेकंड के अंदर कर रही होती हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं उसका मालिक हूँ, मुझे अथॉरिटी है उस पे, मेरे उसके गिर्द एक दायरा है। अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी जिंदगी को पूरे का पूरा घेरा हुआ है, अल्लाह ताला के अंडर में है सब कुछ। इमेजिन करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं हर सिंगल सेकंड के अंदर तुम जो कर रही होती हो, मैं उसको देख रहा होता हूँ, मेरी अथॉरिटी होती है उसके ऊपर। क्या किया है आज आपने छुप के, क्या किया है आज आपने? अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं जो कर रही हो ना तुम, जो तुम कर चुकी हो या जो कर रही हो, जो छुप के कर रही हो, जो सामने कर रही हो, हर चीज के ऊपर मेरी अथॉरिटी है। फोन में क्या देख रही हो, जो मैं पहले बात कर रही थी, फोन कोई चेक नहीं कर सकता, लेकिन आ गई ना बात, वो अल्लाह चेक कर रहा है फोन को भी। अल्लाह को पता है आपकी व्हाट्सएप पे क्या क्या है,
अल्लाह को पता है आप किस अंदाज में बात करती हैं। अल्लाह को पता है आप कब गुनाह कर रही होती हैं। अल्लाह को पता है आप कब कब गुनाह से रुक जाती हैं। अल्लाह को पता है आपने अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह को पता है आपने अल्लाह के लिए क्या क्या छोड़ा है। अल्लाह को पता है आप कौन सा तर्ज जिंदगी अख्तियार करके जिंदगी गुजार रही हैं, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है। और बड़ी चीज की बात नहीं करनी, पहले छोटी को देखें। मालिकी को देखें, तो कह रहा है मालिकी यौम, दिन में तुम जो छोटा छोटा करती हो मैं सबका मालिक हूँ। और मलिकी यौम, दिन में तुम जो बड़ा बड़ा करती हो मैं उस सबका मालिक हूँ। बहुत बड़ा बड़ा और बहुत छोटा छोटा। ठीक है। तो आइंदा से जब कुछ करने लगे ना तो जरा सोच लिया करें। जब अम्मा के आगे कुछ छोटा सा भी बोल देंगी ना आप, तो वो छोटा सा भी अल्लाह को पता है आपने क्या बोला है। अम्मा से जो छोटी सी बदतमीजी आप कर देंगी, किसी के पीछे छोटी सी जो गीबत हम कर देते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, ये तो छोटा सा है। अल्लाह ने बता दिया तुम मेरी नजर से बाहर नहीं हो। तुम मेरी मेरी जो मेरी व्यू पॉइंट है उससे तुम बाहर नहीं निकली अभी। ठीक है। तो डरना है हमने अल्लाह के देखने से। हमारा वैसे सोचने की बात है ना, कितने कितने खुले हैं हम लोग, मतलब कितने नादार हैं हम लोग, कि वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ। आप फोन पकड़ा हुआ है आपने, वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। लेकिन हमें असर ही नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं देख रहे हैं तो देखते रहे। यही एटीट्यूड होता है हमारा। आप फोन में जो कर रही हैं, अल्लाह कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, आप इग्नोर कर देंगी। आप इग्नोर कर देंगी। आप बोलेंगे ठीक है, देखेंगे जब देखा जाएगा, जब जब पकड़ा जाएगा देख लेंगे। हम मुंह से नाफरमानी नहीं करते, हमारे अमल बोल बोल के कह रहे होते हैं तो ये नाफरमानी हो रही है यहाँ पे, ये नाफरमानी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यौम तक हमने देख लिया दुनिया का। अब आखिरत का यौम देखते हैं। अब हम दीन को पढ़ेंगे और साथ आखिरत के यौम को आपने रिलेट करना है। अल्लाह अकबर। अद-दीन, दीन वर्ड, दीन है ना हमारा इस्लाम, ठीक है, उसी से दीन वर्ड है ये। अब दीन का मतलब पता है क्या होता है? दीन का मतलब होता है फैसला करना। ठीक है। किसी फैसले को भी दीन कहा जाता है। या कोई मामला है ना, और वो मामला तय पाया जाए या उसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकल आए, तो उसको कहते हैं अद-दीन। अब फैसला करना कैसे? इंसाफ के साथ। पहले ना मैं आपको ये समझाना चाहूंगी इंसाफ होता क्या है। ठीक है। फिर हम इस आयत को समझेंगे, इस वर्ड को समझेंगे। इंसाफ को समझने के लिए ना पहले आपने एक और वर्ड को समझना है, वो होता है जुल्म। ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। बल्कि तीसरा वर्ड भी ऐड करते हैं, रहम। रहम। एक तरफ रखें रहम को, दरमियान में रखें इंसाफ को, और आगे रखें जुल्म को। इन तीनों को समझते हैं। रहम को तो आपने देख लिया, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि कोई शर्त ही नहीं है इस प्यार में, और अनलिमिटेड है और यकतरफा है, और आपसे कोई डिमांड भी नहीं है क्या तुम भी ये काम करो। जो कहते हैं ना एहसान के लेवल पे जाके कुछ करना, एहसान है। रहम में एहसान ही एहसान है। दरमियान में इंसाफ है। इंसाफ को समझने से पहले जुल्म को समझते हैं। जुल्म का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ढांप देना, किसी चीज को छुपा देना किसी दूसरी चीज से। जब आपके सामने पड़ा हुआ है एक सफेद कपड़ा, और उसको सफेद कपड़े को आप काले कपड़े से छुपा दें, तो आपने नीचे वाली चीज को एक दूसरी चीज से छुपा दिया है। एक चीज को किसी दूसरी चीज से छुपा देना जुल्म करना होता है, किसी चीज को कवर कर देना। अब आप देखें, जुल्म का मतलब दूसरा है किसी के हक में कमी करना, और कमी करते हुए आप उस चीज को छुपा रहे हैं बिल्कुल। जैसे पर्दा करना है, पर्दा करेंगी अगर आप तो वो आपका मतलब फर्ज है ना आप पे। लेकिन आप फर्ज को अगर नाफरमानी से ढांप दें, यानी बेपर्दगी से ढांप दें, तो आपने जुल्म कर दिया। किसके ऊपर जुल्म किया? किसी और के ऊपर नहीं तो अपने ऊपर जुल्म किया। अपने अपने ऊपर ज्यादती की आपने। ठीक है। आपने गीबत, आपको गीबत नहीं करनी चाहिए थी, आपने उस गीबत को गीबत ना करने को डांप दिया है, उस अच्छाई को बुराई से डांप दिया है। तो ये आपने जुल्म किया है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। किसी तीसरे बंदे पे नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया है। जुल्म का मतलब किसी
के हक में कमी करना या अपने हक में कमी करना। जुल्म डंडे सोटे पकड़ के किसी का सर फाड़ देने का नाम नहीं है। जुल्म हक में कमी करने का नाम है। किसके हक में कमी कर रही हैं आप? अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं? नहीं। बच्चों के ख्याल में अपने आप को भूल बैठी हैं। तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं, क्योंकि आपका हक था, आपने वो नहीं किया। आपके वक्त का ये डिमांड है कि वो अल्लाह के रास्ते में लगाया जाए, नहीं लग रहा, अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं। नमाजें छूट रही हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं। बेपर्दगी कर रही हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं। आप अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं ये। ठीक है। एक तरफ जुल्म है और एक तरफ रहम है। एक तरफ रहम इतना कर देना किसी का कि कोई डिमांड ही ना करना, और जुल्म इतना नीचे गिर जाना कि किसी को उसका हक भी ना देना। ठीक है। दरमियान में आ जाए अब इंसाफ। बराबर बराबर, इंसाफ का मतलब होता है बराबर बराबर करना, बिल्कुल पैरामीटर बराबर हो गया अब। ना रहम हो रहा है, ना जुल्म हो रहा है, दरमियान में आ गया। यहाँ पे ना अब दीन का वर्ड आया है, जिसका मतलब है किसी फैसले को करना इंसाफ के साथ। होना क्या चाहिए था? एक तरफ अल्लाह हमें डरा रहे हैं कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ठीक है, और मैं रहमान और रहीम हूँ, पीछे रहम आया है। उसका उलट आना चाहिए था ना वैसे आगे। अल्लाह ताला कहते कि मैं मेरा तुम्हारे ऊपर रहम है। इसके उलट अगर तुमने मेरी फर्माबरदारी ना की तो मैं तुम्हें अजाब दूंगा। ये होना चाहिए था ना, मैं तुम्हें अजाब दूंगा। लेकिन अजाब की बात फिर भी नहीं आई। पीछे प्यार है, आगे अजाब की बात फिर भी नहीं की। रहम का मुतजाद वर्ड अजाब फिर भी अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा अगर तुम मेरे रहम की कदर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अजाब दूंगा, ये रब ने नहीं कहा फिर भी। यहाँ मैं एक चीज आपको समझाना चाह रही हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। पीछे है रहम और आगे अजाब की बात नहीं हुई, इंसाफ की बात हुई है। आगे इंसाफ की बात हुई है। एक चीज समझे हम, यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, कि एक बंदा जिसने आपका जीना हराम किया है, एक बंदा जो कदम कदम पे आपको ताने दे रहा है, आपको टोक रहा है, आप पे तंज मार रहा है, आपके ऊपर वो जुल्म की हद तक गया है, बदले में आपका दिल क्या करता है? मैं इसका गला काट दूं। लेकिन क्या गला काटना जुल्म होगा या इंसाफ होगा? यहाँ पे ना हम अगर अपने आप को रखें, हम इतने गुनाह करते हैं ना, इतने गुनाह करते हैं कि उन गुनाहों के बदले अगर 10 जहन्नमें भी बनाई जाए और अल्लाह ताला हमें उसमें डाल दें तो वो कम होगा। लेकिन क्या अल्लाह ताला हमें ये बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डबल ट्रिपल अजाब दूंगा? नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा तुम जो करके आई हो ना, उसके बराबर बराबर इंसाफ के साथ हिसाब करूंगा मैं तुम्हारे साथ। हमारे लिए सबक क्या है? सबक मेरी प्यारी बहनों हमारे लिए ये है, जिंदगी में अगर आपको कोई बहुत तकलीफ देता है, इतनी तकलीफ कि आपके बर्दाश्त नहीं हो रही, इतना किसी ने माजी में आपको हर्ट किया, जैसे अक्सर औरतों को जब नई नई शादी होती है तो कुछ सालों में ससुराल वालों की तरफ से तकलीफ मिलती है, और उसके बाद जब वो साल गुजर जाते हैं तो फिर सारी उम्र शौहर बेचारे को ताने मिलते रहते हैं कि तेरे वालिदैन ने, तुम्हारे घर वालों ने ऐसे किया था सारी उम्र। और फिर सारी उम्र उनको घर में भी एंटर नहीं होने देती और अजीब किस्म के माहौल बना रहता है। किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है ना, अल्लाह ताला की ये सुन्नत आपको बता रही है। पहली बात तो ये है कि अगर आप माफ कर दें तो फिर आप रहम करने वाली हो जाएंगी, और अल्लाह ताला को तो रहम करने वाले बड़ी पसंद है। ठीक है। लेकिन अगर आप माफ नहीं करना चाहती तो खुदारा किसी पे जुल्म नहीं करें। जितना किसी ने आपके साथ किया है ना, उसकी हद तक रहें, इंसाफ करें, फिर जुल्म नहीं करें। हम जुल्म कर देते हैं, हमें मौका मिलने की देर होती है, हम हर हद क्रॉस कर देते हैं। हम उतना नहीं करते जितना किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम डबल ट्रिपल लेवल तक जाके बुरा कर रहे होते हैं। हम हद क्रॉस कर देते हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, एक दफा हर्ट किया है तो माफ कर दो, नहीं माफ करने का जिगरा तो उसको आपको आप भी उसको एक दफा हर्ट कर दो, लेकिन 3 4 दफा फिर मत करो, बार बार मत करो। इंसाफ करने, फिर अल्लाह की सुन्नत हमें ये बता रही है कि कयामत के दिन जो जो कोई दुनिया में करके आया है उसको बराबर बराबर इंसाफ के साथ हिसाब मिलेगा। हमें सबक क्या मिला? कि अपनी जिंदगी में अगर रहम नहीं कर सकती, एहसान नहीं कर सकती, तो इंसाफ ही कर लो, इंसाफ के मामलात ही कर लो। ठीक है। अच्छा एक और चीज रहम के उलट यहाँ पे अजाब नहीं आया, यहाँ पे इंसाफ आया हुआ है, अदीन इंसाफ आया हुआ है। अच्छा, अब अल्लाह ताला यहाँ पे डरा रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन डराने के लिए तो अजाब होता है ना? मैं अब कहूं आपको कि तुमने मेरे साथ तब इतना बुरा किया था तो मैं तुम्हें मार दूंगी, फॉर एग्जाम्पल, आप डरेंगी?
کہ میں نے इसको मारा तो नहीं है, लेकिन ये मुझे मार देने की धमकी दे रही है, ये तो मेरे ऊपर बढ़ा चढ़ा के अजाब देने की बात कर रही है, तो आप डरेंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ जितना तुमने मेरे साथ किया ना इतना मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी, देख लेना, तो आप डरेंगी? बोलेंगे अच्छा देखेंगे, ठीक है उतना कर लेना, ठीक है देखेंगे देखेंगे तुम क्या करती हो। जब हमें बढ़ा चढ़ा के कोई चीज कहा जाता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया, यहाँ भी बराबरी की बात हुई है, और हम डर रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ना यहाँ पे हमें अपने अजाब से नहीं डरा रहे, अल्लाह ताला यहाँ हमें अपने इंसाफ से डरा रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमें अपने इंसाफ से डरा रहे हैं। आपको पता है अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी चीज है ना डरने वाली, उसका अजाब नहीं है, उसकी जहन्नुम नहीं है, सबसे बड़ी डर वाली चीज रब ताला का इंसाफ है। मैं ये समझती हूँ कि हम जितनी भी नेकियां कर लेना, हम जो भी अच्छे काम कर लें, हमने गुनाह करने ही करने हैं, और हम करेंगे ही करेंगे। अभी मैं क्लास दे रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितनी दफा मैंने गलत बात कह दी होगी, पता नहीं कितनी दफा मैंने गलत सोच लिया होगा, पता नहीं कितनी दफा मैंने किसी इंसान के बारे में गलत कुछ भी इमेजिन कर लिया होगा। मतलब हम नेकी करते हुए भी गुनाह कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? हम अच्छा बनते हुए भी, हम नेकी के रास्ते में चलते हुए भी बड़े गुनाह कर रहे होते हैं। हम कुछ भी कर लें गुनाह तो हमसे नहीं छूटेंगे, गुनाह नहीं हमसे छूट सकते, हम पूरे के पूरे नेक नहीं बन सकते, तो अजाब की मुस्तहिक तो हम हर पॉइंट में रहेंगे ना। हम नेकियां करते हुए भी अजाब के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हम उसमें गुनाह कर रहे हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं, अजाब के मुस्तहिक तो हम तब भी हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें अपने इंसाफ से डरा रहे हैं। अल्लाह ताला अगर कयामत के दिन इंसाफ करने पे आ गए ना, तो हम नेकियां करते हुए भी चूंकि गुनाह कर रहे हैं, तो हम बच नहीं पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जितनी मर्जी नेकियां कर लें, हम गुनाहों का इर्तिकाब कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। और रब्बे ताला के सामने आप खड़ी हुई हैं जाके कयामत के दिन, और अल्लाह ने ये कह दिया, पूछ लिया, अगर रब ने ये बोल दिया ना कि ये क्या करके आई हो, बस खत्म, फिर खत्म। अगर सवाल हो गया ना, अगर आपका नामा माल आपके सामने खोल दिया गया और आपको कहा गया पढ़ो इसको, देखो इसको, तब तो आपको ये भी मौका नहीं मिलना, तब तो हमें ये भी मौका नहीं मिलना कि अल्लाह ताला फलां पेज पे मैंने कोई नेकी भी की हुई है वो भी देख लें, हमारी ये भी जुबान नहीं खुलनी। और अल्लाह ने किसी गुनाह के बारे में पूछ लिया, हम गए, एंड खत्म, जहन्नुम वाजिब हो जाएगी फिर। इसलिए अल्लाह ने अजाब से नहीं डराया, अल्लाह ने इंसाफ से डराया है। अल्लाह ने कहा है डरो मेरे इंसाफ से। कयामत के दिन हम कहते हैं ना अल्लाह इंसाफ करेगा, हम कहते हैं अल्लाह देख लेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, ये नहीं कहा करें। वो इंसाफ करने पे आया ना, तो वो जिसने आप पे जुल्म किया वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन आप भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि आपने भी बड़ी ज्यादतियां की होंगी। अगर इंसाफ करने पे आया तो ना वो बचेगा ना आप बचेंगी। दुआ किया करें कि अल्लाह मुझ पे भी रहम करें और उन पे भी रहम करें जिन्होंने मुझ पे रहम नहीं किया। ठीक है? इस तरह इंसाफ की दुआ नहीं हमने अल्लाह से मांगनी, हमने अल्लाह से रहम की दुआ मांगनी है। हमने ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा नाम इमाल दाएं हाथ में हो, और हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल जाए। अगर हिसाब होने लगा तो बच कोई भी नहीं पाएगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अद्दीन का वर्ड यूज करके हमें बताया है कि तुमने मेरे इंसाफ से डरना है, और नेकियों में आगे बढ़ते रहना है, और अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, वो मुझ पे रहम करेंगे। अल्लाह का रहम मांगा करें, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला का रहम मांगे। जब अल्लाह का रहम हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुनिया में भी हम सुरहरू हो जाएंगे और आखिरत में भी सुरहरू हो जाएंगे। अब आप जरा पूरी आयत को कंक्लूड करें। मालिकी यौमिद्दीन, छोटी चीज का मालिक, बड़ी चीज का मालिक, दिन के एक एक सेकंड का मालिक। और अब इस दिन को रिलेट करें कयामत के साथ, जो मैंने बात की थी ना, अभी दुनिया के वक्त की तो हम बात कर चुके हैं, आखिरत के वक्त की। कयामत के दिन एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में जो हो रहा है, उसका रब ताला मालिक है, उसने उसकी अथॉरिटी ली है। दुनिया में आप जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल करके आई हैं, कयामत के दिन उस एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा, और फिर आपको जन्नत या जहन्नुम मिलेगी। लेकिन हमारी दुआ क्या, सब छोटी या बड़ी से बड़ी चीज हम करके आएंगे, कयामत के दिन हमने उसका हिसाब देना है, और दुआ यही है कि हम हिसाब ना दें, अल्लाह हमसे हिसाब ना लें, अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह दे दें। इलाही आमीन।
اس کو صرف ابھی تک ہماری 3 آیات ہو چکی ہیں، تھوڑا سا ان کا میں ویو آپ کو بتاتی ہوں، دین ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے۔ پورے کا پورا دین اسلام کا جو بیسک ہے نا، جو اسلام کی جڑ ہے، جو بیس ہے، وہ یہاں تک ڈن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں تک 3 آیات تک ہمارا پورے کا پورا دین آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے اللہ نے کہا تمام حمد کا مستحق میں ہی ہوں، تمام حمد میرے لیے ہے۔ اگر فرض کریں کوئی نافرمان یا کوئی نان مسلم بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی دین اسلام کیا ہے، تو دین اسلام الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے۔ اس پہ یہ کنکلوژن، یہ انٹروڈکشن آپ کے اللہ کا یہاں تک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے آپ اسے انٹروڈیوس کرائیں گی؟ آپ کہیں گی تمام حمد و ثنا کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، اور جو وہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ ہے اور نان مسلمس کے لیے بھی اللہ ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں، رب العالمین، رب کے اندر محبت ہے، رب کے اندر پیار ہے، اور وہ محبت اور وہ پیار اور وہ ملکیت اور وہ خیال رکھنا وہ تمام عالمین کا ہے، ازل سے ابد تک ہر ایک کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی محبت سب کے لیے ہے، اور اس کا پیار سب کے لیے ہے، اس کی ملکیت سب کے اوپر ہے۔ یہاں تک اس بندے کو یہ بتائیں گی کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ ازل سے ابد تک آنے والے ہر انسان کا وہ خیال رکھے گا، اور تمام عالمین کا وہ مالک ہے۔ آگے، اس کا رحم بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے، لیکن لیکن اگر تم نے اس رحم کی قدر کی تو تم اس کا رحیم پا سکو گے، یعنی اس کا مستقل رحم پا سکو گے۔ لیکن اگر تم نے اس کے رحمان ہونے کی، اس کے شدید رحم کی قدر نہ کی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اس کی رحیم والی صفت نہیں پاؤ گی، پھر تم حساب دو گی، انصاف کے ساتھ حساب ہوگا، اور حساب کے بعد تمہیں جنت یا جہنم ملے گی۔ مطلب آپ ایک بندے کو پورے پورا امیج دے دیتے ہیں کہ اللہ ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ لیکن اگر تم نے اس کے پیار کی قدر نہ کی، اگر تم اس کے پیار میں بگڑ گئی، اگر حد سے کراس کر گئی تم، تو وہ تمہیں ایک نہ ایک دن پکڑ لے گا، اور جس دن اس نے تمہارے گرد اپنی رسی کو مضبوط کر لیا اور تمہیں دبوچ لیا نا، تو اس دن پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس دن سے پہلے ڈر جاؤ۔ یہ ہے رب کا انٹروڈکشن۔